गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन ग्रेविटेशन लेसन 10 कर रहे थे। हमने आपको बताया था कैपलर्स के तीनों लॉ बताए थे। कैपलर का फर्स्ट लॉ कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ था कि द प्लैनेट्स दे आर मूविंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और सेकंड मैंने बताया था कि दे स्वीप द एरिया इक्वी एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड लॉ मैंने बताया था कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस it is directly proportional to that is the square of the time period, means r cube proportional to t square। हमने तीनों लॉ किए थे। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं स्टूडेंट ग्रेविटेशन में, दैट ओवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मास एंड वेट। मास और वेट। मास क्या है स्टूडेंट? मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, quantity of matter contained by the object, contained by the object, it is called mass। और weight क्या है स्टूडेंट? weight is the force by virtue of which an object it is attracted toward the earth। weight क्या है? it is the force, it is force by which an object is attracted towards the earth। This is the definition of weight। अभी क्या है कि मैंने लिखा है कि weight it is the force by which an object is attracted toward the earth, it is called weight। Now इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? जो वेट है वो भी क्या है? वेट इज आल्सो अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स। और हमको पता है ये कि जो फोर्स है मैथमेटिकली F इज इक्वल टू m इंटू जी। ये आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका मतलब क्या है? जो वेट है इट इज फोर्स, और जो इट इज इक्वल टू W, मींस जो वेट है हमारा क्या हो जाएगा? वेट that is W, it is equal to m into g। is it clear student? पहले definition clear होना चाहिए, then the question will be what is the difference between mass and weight। फिर ये question करेंगे कि mass और weight में difference क्या है। तो definition मैं दोबारा से बता रहा हूं। mass it is the quantity of matter, mass it is the quantity of matter contained by the object is called mass। और weight क्या है? it is the force by which an object is attracted towards the earth, that is called the weight। mathematically F is equal to m into g, and weight is the force by virtue of which object is attracted toward the earth। इसका मतलब क्या है? it is equal to W, and W weight is equal to m into g। So this concept of mass and weight should be clear, then only we can make the difference between mass and weight। Now we'll come to the main question, how to differentiate between mass and weight। Now students please note down, जो मैं लिख रहा हूं differences आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। and this is a very very important question, generally this question is being asked in the exam। तो हम करते हैं mass और weight difference। yes student, पहला पॉइंट क्या है? mass क्या है? it is the quantity of matter, it is the quantity of matter contained by the object। it is the quantity of matter contained by the object। the definition of mass, और इसमें क्या है? it is the force, it is the
force which attracts the object, which attracts the object, और इसको हम कह सकते हैं it is the force that by virtue of which attracts the object towards the earth, it is the force by which attracts the object towards the earth. It is the force, or it is the force by virtue of which object is attracted towards the earth. It is called weight. Second difference student क्या है? The SI unit of mass is kg. SI unit of mass क्या है? किलोग्राम. और इसमें क्या है? SI unit of force, SI unit of weight is न्यूटन. इसके SI यूनिट क्या है स्टूडेंट? न्यूटन है. इसके SI यूनिट क्या है? न्यूटन है. इसके SI यूनिट न्यूटन. तीसरा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और यहां पे क्या है? ये क्या है? जो वेट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो वेट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और जो ये आपका मास है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और क्या है? फोर्थ डिफरेंस क्या है? मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस. इट इज मेजर्ड विद फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस. और यहां पे क्या है? इट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस. इट इज मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस. और डिफरेंस क्या हो सकता है स्टूडेंट? फिफ्थ एक और डिफरेंस करते हैं. फिफ्थ डिफरेंस क्या हो सकता है? नंबर 5, mass, it is a constant quantity. It is a constant quantity. और ये क्या है? weight, it is a variable quantity. It is a variable quantity. और एक डिफरेंस लिखते हैं. mass cannot be zero. और जो आपका वेट है इट कैन बी 0. और एक पॉइंट करते हैं. 7th पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा भी, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा. इट इज न्यूमेरिकल इन योर बुक. आपका सिलेबस में न्यूमेरिकल है कि जो अगर मून पे चले जाते हैं तो हमारा मास जो है इट विल रिमेन सेम ऑन द सरफेस ऑफ मून. mass remain same. और यहां पे क्या हो जाएगा? the our weight it becomes 1/6 on moon. मून पे हमारा वेट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. अगर हमारा अर्थ पे जो वेट जितना है उसका 1/6. रीजन बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू 1/6 हो जाती है. और अभी हमने किया है कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M इंटू G. अगर क्योंकि ये जो मास है ये तो कांस्टेंट है और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू अगर 1/6 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट भी कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. What is the difference between mass and weight? You can note down. मैं दोबारा से सारे पॉइंट बता रहा हूं आपको. फर्स्ट पॉइंट है इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट. पहला क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट. वेट में क्या है? इट इज द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ. सेकंड क्या है? द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम.
और सेकंड इसमें क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। थर्ड क्या है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट मैंने पहले जब आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेसन कराया था, मैंने बताया था आपको कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच गिव्स अस ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच गिव्स अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। जो हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती हैं उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स अस ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल बैलेंस। पहले स्टूडेंट, पहले टाइम में क्या होता था, हमारे पास तराजू होता था, आजकल भी अवेलेबल है। होता क्या है, एक तरफ हम क्या करते हैं कि जो उसी को हम क्या कहते हैं, जो तराजू है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल बैलेंस। और उसके बाद आपको ये हमारा फिजिक्स लैब में भी है फिजिकल बैलेंस। अगर जब जैसे क्या करते हैं हम कोई भी मान लो चीज को, अब मास को कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस क्या है, हुक्सा होता है, उसके अंदर क्या करता है, उस चीज को उसको हैंग कर देते हैं एंड इट that it is measured, तो वेट है, it is measured with the help of the spring balance। आपने देखा भी होगा दोनों जो स्प्रिंग बैलेंस और फिजिकल बैलेंस बोथ आर अवेलेबल इन द फिजिक्स लैब, वेरी वेल यू कैन सी इन द लैब कि फिजिकल बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस। फिफ्थ पॉइंट है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है जो फिक्स है। अगर मैं बोलता हूं जो मास है, मान लो मेरा मास अगर कितना है 60 kg, अगर मैं यहाँ पे हूं और उसके बाद में मैं मून पे चला जाता हूँ या किसी और प्लेनेट पे, माई मास विल रिमेन सेम। तो मेरा मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो वेट है, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। और क्या है, मास कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता मास। अगर मैं अर्थ के ऊपर मेरा मास 60 kg है, इफ आई गो टू द मून तो मेरा मास 60 kg रहेगा, लेट इट बी ऑन द सरफेस ऑफ मून, लेट इट बी एट एनी अदर प्लेस आल्सो। और उसके बाद में क्या होगा, वेट जो है वो जो है इट कैन बी, मास कैन नॉट बी जीरो बट इट कैन बी जीरो। और क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ मून द मास रिमेन सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द on the surface of moon the weight will become 1/6 on the surface of moon. It is a very very important question, please you can note down the differentiate between mass and weight. Now further our next topic will be how to prove that our weight becomes 1/6 on the surface of moon. हमारा जो वेट है सरफेस ऑफ मून पे कैसे 1/6 हो जाता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे। जस्ट आई विल गिव यू 1 minute, प्लीज यू कैन नोट डाउन दीज डिफरेंसेस, मास एंड वेट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर क्वेश्चन अगर मान लो डाउट होता है, इन द लास्ट when I ask the doubt, that time you can clear your doubts. Now you can note down all the points. Now students, अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि हमारा जो वेट है, इफ विल गो टू दी सरफेस ऑफ मून, अगर हम मून पे जाते हैं तो हमारा जो वेट है वो 1/6 कैसे हो जाता है। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अवर वेट बिकम्स 1/6 ऑन द सरफेस ऑफ मून। नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं, आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। अभी हमने किया मास और वेट के बारे में किया है। नाउ नेक्स्ट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। Weight of an object on the moon. मून पे जो वेट है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
और कैपिटल M इट इज द मास ऑफ द मून. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये मान लेते हैं that Wm will be the weight on moon, weight on the surface of moon. ये हमको मालूम करना है. एंड आर एम नोट कर लेता हूं, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. दिस इज अवर फार्मूला एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही हमारा क्या है, इट इज W. इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देन वेट ऑन मून इट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट, अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बात करेंगे, देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इट विल बी कैपिटल G. कैपिटल G क्या है, इट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और यहाँ पे क्या है, m e है, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या है स्टूडेंट, हमको सारा जो सब पूरे सारा डाटा दिया हुआ है. यहाँ पे आपका जो पेज नंबर 1, दैट इज इट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 137 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. इट इज गिवन एज द मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ इज 5.98 into 10 raised to power. इट इज गिवन एज अ 10 raised to power 24. और उसके बाद में रेडियस दिया हुआ है अर्थ का 6.37 into 10 raised to power 6. इट इज अ मीटर. और मून का मास दिया हुआ है 7.36 into 10 raised to power 22. और उसका रेडियस दिया 1.74 into 10 raised to power 6 मीटर. ये सारी की सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं, और G की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है. इट इज 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर. दैट इज RkG. दैट इज न्यूटन. It is its value capital G. It is a 6.67 into 10 raised to power -11. ये वैल्यू फिक्स है स्टूडेंट. कैपिटल G की वैल्यू इट इज फिक्स. नाउ इफ विल पुट ऑल दी गिवन डाटा, जो वैल्यूज हमारे को दी हुई हैं, सारी की सारी वैल्यूज को अगर हम दोनों में रखेंगे, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में रखेंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं कि जो इसको दोनों को, जितना वेट मून पे है उसको और जो वेट है अर्थ पे, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो टोटल हमारा रिजल्ट आएगा इट विल बी 1/6. मींस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इट विल बी दी 1/6 ऑफ द वेट ऑन, जितना जो है अर्थ पे वेट है उसका क्या होगा, 1/6 होगा. अभी सारी वैल्यूज को स्टूडेंट कैसे रखना है, दोबारा से हमारे फार्मूले के हिसाब से, कि अगर हम देखते हैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, हमारा जो G है, G अगर मान लो दोनों तरफ क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड, दोनों में G कॉमन है, तो नीड ना टू उसके बारे में हम उसको नहीं भी लिखेंगे. तो अगर वैसे उसकी वैल्यू अदरवाइज लिखना चाहें, इट इज 6.67 10 raised to power -11. We write only G. Now mass of the moon, it is given as a 7.36 into 10 raised to power 22. Now mass of the object small m है, और जो radius of the moon it is given as a 1.74 10 raised to power 6 और इसका स्क्वायर. और सेम स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में जो आ जाएगा इट इज इक्वल टू, इट विल कम एज अ 2.431 into 10 raised to power 10
इंटू जी इंटू एम। ये आपकी इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली जो अर्थ पे आप वेट को अगर निकालना चाहेंगे तो जो फार्मूला है इसके अंदर आप वैल्यू रखेंगे। कैपिटल जी को तो हमने ऐसे ही रखा है, और जो मास ऑफ अर्थ है स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू, गिवन द मास कितना दिया हुआ है, अर्थ का मास दिया हुआ है, इट इज गिवन एज अ 5.98 इंटू 10⁻²4। उसके बाद में क्या है, देन इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय जो रेडियस दिया हुआ है अर्थ का, इट इज गिवन एज अ 6.37 इंटू 10⁻6 और इसका स्क्वायर। इसको स्टूडेंट अगर जब आप सॉल्व करेंगे, देन द रिजल्ट विल कम। रिजल्ट जो आपका आएगा, इट इज इक्वल टू, जो आपका रिजल्ट आएगा इट विल कम एज अ 1.47 इंटू 10⁻11 इंटू जी इंटू एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 4। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देना है। नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 3 बाय 4। तो जैसे 3 को 4 से करेंगे, WM, इट इज WM डिवाइडेड बाय WE, इट इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10⁻10 इंटू G इंटू M डिवाइडेड बाय 1.47 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल G कैपिटल M। कैपिटल G से कैपिटल G, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल है। नाउ स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देन टोटल इट कम्स टू बी, इसका क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज 0.165 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे 165 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, इट इज 1/6 और WM डिवाइडेड बाय WE इज इक्वल टू 1/6 और इससे करेंगे आप WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE। व्हाट दिस रिजल्ट इंडिकेट्स, ये रिजल्ट इंडिकेट करता है हमारे को कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, इट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जितना अर्थ के सरफेस पे वेट है, उसका वेट क्या हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून, इट विल बी 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। So this is also very very important topic which is given in your NCERT also। आप इसको दोबारा से आप इसको लर्न करना, इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस भी करना कि कैसे जो है ये 1/6 आ जाता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो इसके पीछे जो कंसेप्ट है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू 1/6 हो जाती है, इसीलिए जो मून पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है 1/6 हो जाता है। दिस इज द रीजन स्टूडेंट। विद दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक इन दिस लेसन। आगे जो आपका थ्रस्ट और प्रेशर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी है, दैट पोर्शन इट इज रिलेटेड एंड इन दिस योर सिलेबस इज फॉर ग्रेविटेशन, यहीं तक है। और उससे पहले क्या है, थोड़ा सा और करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। स्टूडेंट मैं आपको जल्दी से आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर थोड़ी बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी बात करते हैं कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। कि अगर हम मान लो सरफेस पे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन। मैं आपसे बात कर रहा था स्टूडेंट, आपने मोशन का जो लेसन, फर्स्ट लेसन आपका मोशन का है, उस लेसन के अंदर आपने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। पहली इक्वेशन आपने पढ़ी है V इज इक्वल टू दैट इज U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन आपने पढ़ी है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन आपने पढ़ी थी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। नाउ स्टूडेंट इन दिस लेसन ग्रेविटेशन के केस में यहाँ पे A क्या है,
यहाँ पे ए जो एक्सेलेरेशन था, नाउ हियर इन दिस लेसन इट विल बिकम एज अ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम क्या करते हैं, ये हमारा सरफेस है, अगर मैं मान लेता हूं इट इज सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं अबाउ दी सरफेस जाता हूं या बिलो उस पर जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स ऊपर से लेके हाइट से लेके नीचे आता है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। मान लो ऊपर से लेके नीचे आएगा तो जी की वैल्यू प्लस में रहेगी, और अगर मान लो नीचे से ऊपर रहता है जी की वैल्यू माइनस में रहेगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो मैं यहाँ से फेंकता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ मैं फेंकता हूँ तो जी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। उसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ यहाँ से, तो जी की वैल्यू प्लस हो जाएगी। On the basis of this concept, there are so many numericals in your NCERT book. आप NCERT में से न्यूमेरिकल करना स्टूडेंट्स। और जैसे इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें आपको एग्जांपल दिया हुआ है, a car falls off it's a ledge and drop in the ground 0.5 seconds, और g की वैल्यू दी हुई है, यहाँ टाइम 1/2 सेकंड है। और जब स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट होल्ड किया हुआ है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, और g की वैल्यू 10 ले लिया, ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू प्लस में है, और एक्सेलरेशन कार का दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू 0 है, v इज इक्वल टू जी टी। अगर a एक्सेलरेशन है अगर तो उसके केस में क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। और एवरेज स्पीड आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का फार्मूला स्टूडेंट यू कैन यूज दिस सेकंड फार्मूला। सो आप ये न्यूमेरिकल करके देखना स्टूडेंट 10.2 10.3, और इस प्रकार से आप और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद दिस